Good morning everyone. Today we are going to study about the operations on real number. Here we have written operations. So what kind of operation we are going to conduct on real numbers? That is the arithmetic operation, the addition, the multiplication, subtraction and division. You already know that the real numbers we have divided into three parts. That is रियल नंबर को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज इंटीजर्स, सेकेंड इज रैशनल नंबर्स एंड द थर्ड वन इज इररेशनल नंबर्स. ओके, you already aware about the what are the integers, what are the rational number and what are the irrational numbers. Okay, so in the previous classes you have studied about these arithmetic operations on the integers. Like I take integer 2, 3, 4, 5 and so on. 1 is also integer. Then if I want to perform these operation into these operation for the integers number, it is very easy. Like how? If I take addition property, so it will become like 2 plus 3 is very easy, 5, 4 plus 5 is also very easy, that is the 9. Okay, if I want to take subtraction property for integers, that is 4 minus 2, 2. These are all very easy. Multiplication property, like 4 2 ja 8. Divisional property, that is 4 divided by 2 is 2. This is very easy. Okay, if we want to perform these operations on rational numbers and irrational numbers, we have to see some other properties like the closure property, the second one is commutative property, the third is associative property, and the fourth one is distributive property. We have already seen that when we perform these operations on real numbers, we will get these operations on integers, we will get integer also. Okay, like 2 plus 3, both are integers, we get 5 as an integer. 4 plus 5 is also integer, 9 is also integer. Okay, when we perform these operations and these operation on integers, we will definitely get integer. Okay, but when we perform these operations, the addition, multiplication, subtraction and division on rational and irrational numbers, so do we get these number also? Like अगर हम यही वाले सारे ऑपरेशंस रैशनल और इररेशनल नंबर पे परफॉर्म करेंगे तो क्या हमें रैशनल और इररेशनल नंबर ही मिलेंगे? तो दिस इज आवर क्वेश्चन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. So now we will see whether the closure property, commutative property, associative property and distributive property satisfy for rational and irrational numbers. First we will check for rational numbers. A simple closure property. Closure property means when we perform the addition of rational number to rational number, the subtraction for rational number to rational number, the multiplication for rational number to rational number and the division for rational number and rational number, the answer will be our rational number. Okay, our second property is commutative property. Commutative property means the operation remains the same but their position interchange. Like for addition, we can see that a plus b equals to b plus a is true for rational numbers. Okay, when we perform this, हमें क्या करना है, सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है. अगर हम a प्लस बी को परफॉर्म करें या b प्लस a को परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी. When we perform a minus b
to b minus a, we will not get the equal result. Okay, same as for multiplication property, ab equals to ba is also same, we will get the rational number. Then for division, if we perform a upon b which is not equal to b upon a, रेशनल नंबर के लिए अगर आप 2/3 करते हो तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, यू नो इट वेरी वेल. ओके, तो रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई होता है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता है. ओके, और थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property. For this, we will take three numbers like A, B, and C. If we perform addition in between three numbers, for associative properties like A plus B plus C, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ that A plus B plus C, तो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट आएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी रैशनल नंबर में ये फॉलो होता है कि मैं A plus B plus C लिखूँ या A plus B और फिर देन मैं सी से ऐड करूं तो वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. नेक्स्ट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. हम देख लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई बाय बी, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय सी, देन वी विल गेट द इक्वल रिजल्ट बाय व्हेन वी मल्टीप्लाई बी प्लस सी फर्स्ट एंड देन वी मल्टीप्लाई ए टू इट. ओके, इफ वी टेक फॉर सब्सट्रैक्शनल प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर हमने a माइनस बी माइनस सी करा है तो वो इक्वल नहीं होगा a माइनस बी को फर्स्ट सॉल्व करने में एंड देन फिर उसको c से माइनस करने में. डिवीजन में देख लेते हैं, a अपॉन b अपॉन c विच इज नॉट इक्वल टू a b अपॉन c, क्योंकि ये क्या होगा आगे सॉल्व होके a अपॉन बी सी हो जाएगा. यहाँ पे तो क्या आ रहा था, a अपॉन बी सी आ रहा था, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब सेटिस्फाई होता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता है. सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा. Our last property is fourth one, the distributive property. Distributive means हमें क्या करना है, like हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी को, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा कि अगर हम a मल्टीप्लाई b करें देन प्लस a मल्टीप्लाई c करें. तो हमने क्या करा, a को मल्टीप्लाई कर दिया b और c से. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो रेशनल नंबर के केस में ये सेटिस्फाई होता है. ऐसे ही अगर हम देखें सब्सट्रैक्शन के केस में तो ये भी सेटिस्फाई है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. सो डिस्ट्रीब्यूशन में के केस में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ सेटिस्फाई होता है. ओके, और नेक्स्ट थिंग इज, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं, वेट अ मिनट, जब हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलेगा, राइट. बट अगर हम देखें इरैशनल नंबर के केस में, फर्स्ट में हमने देखा रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करने पर रैशनल नंबर आ रहा है, सब्सट्रैक्शन के केस में भी यही आ रहा है, डिवीजन के केस में भी यही आ रहा है, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है. बट इरैशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है. इरैशनल नंबर को अगर आप इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका कुछ भी आ सकता है, इरैशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है. ओके, सेम थिंग अगर हम देखें कि हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, रैशनल नंबर मिला. इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ सॉल्व किया तो हमें क्या मिले, रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर मिल गए. ओके, इस केस में. बट अगर हम इरैशनल को सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर ही मिलेगा. तो यही हमें सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, जैसे हमने 2 को ऐड किया रूट 2 के साथ, है ना,
या फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा √2 के साथ, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये दोनों मिला के क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज we have to learn some properties which is very useful to solve the irrational numbers. There is some identities like if you are having अंडर रूट के अंदर ए बी, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी. जैसे हमारे पास है, अगर हम देखें ए इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया और बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास 2 × 3 है, तो हम इसको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास अंडर रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं और अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए सेम हम 2 और 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, तो अगर हमारे पास 2/3 है अंडर रूट के अंदर, तो हम इसको √2/√3 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, देयर इज सम आइडेंटिटी, थर्ड वन इज जो फॉर्मूला पे बेस्ड है. ओके, रूट ए प्लस रूट बी है हमारे पास. सेकेंड है रूट ए माइनस रूट बी. ओके, तो हम इसको, आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी. तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या सॉर्ट आउट करिए, ए माइनस बी की फॉर्म में आ गई है. ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर हमारे पास है ए प्लस रूट बी. ओके, नेक्स्ट इज ए माइनस रूट बी. तो सेम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बी रूट की फॉर्म में है और ए रूट की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा. ठीक है, या फिर हम इसको अगर ऐसे भी लिखें √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा. ठीक है, सेम बात है. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज. अगर आप एक और है आइडेंटिटी, जैसे रूट ए है प्लस रूट बी है, इसका स्क्वायर आपके पास है, तो सेम भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है. तो ये जाके हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस बी, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, और ये हमने अभी सीखा था कि रूट ए और रूट बी अलग अलग हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी. राइट, अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5 के अंदर. ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमने देखा कि क्लासीफाई करने हमें कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है. तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिए पहले हमें रैशनलाइजेशन सीखना होगा. ओके, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो. कैसे, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है सेम डिजिट से विद अपोजिट साइन, और डिवाइड भी सेम डिजिट से ही करना होता है. जैसे हमारे पास है 1/√2, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है. तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में डिजिट है उसी से ही मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे. जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. कैसे, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2. तो हमारे पास क्या आ गया, √2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया. क्यों, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना. ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास डिजिट है उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. राइट, अगर हमारे पास हो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + √3. अब इसको कैसे करेंगे, क्या 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा ही नहीं, वापस से इरेशनल नंबर आ जाएगा. तो हमें एक्चुअल में क्या करना है,
इसके अपोजिट साइन से, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, उससे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है, क्या होगा 2 प्लस रूट थ्री हमारे पास आ गया। हमने क्या करा, 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 माइनस रूट थ्री से डिवाइड भी कर दिया। अब ये चीज़ देखिए, आप इन दोनों में क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 माइनस रूट थ्री 4 माइनस थ्री, दैट इज 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1। तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सब सिंपल फॉर्मूलेज को याद रखना है। कैसे फॉर्मूले, अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 1 2 3 4, 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। एंड p एंड q हमारे पास क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, वो कैसे सेटिस्फाई होंगे, a टू द पावर p, a टू द पावर q, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर p प्लस q। आपने सुना होगा बेस इक्वलेंट हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेम जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 टू द पावर रेशनल नंबर है 3/2, ओके, और 2 टू द पावर 4/5। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूले से कि अगर बेस इक्वलेंट हो तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो दैट इज 3/2 प्लस 3/2 प्लस 4/5। ओके, अब इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। 3/2 प्लस 4/5 को सॉल्व करने के लिए 10 हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे 15 प्लस 8, तो क्या है हमारे पास, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 15 3। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2 टू दी पावर 23 अपॉन 10, राइट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेकेंड, अगर आपके पास हो कि a टू दी पावर p आपको दे रखा है और यहाँ पे q है, तो ये चीज़ क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, जैसे पी क्यू हो जाता है। ये कैसे, अगर आपको दे रखा है 4 टू द पावर 1 दे रखा है, ओके, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपके 2 है, रियल नंबर है क्यू, पी क्यू क्या रेशनल नंबर है, तो 1/2 और 2 दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1/2, क्यू की वैल्यू क्या है 2/1, राइट। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर p हो और ब्रैकेट के अंदर और बाहर q हो तो उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या होगा ये 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 4, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास कि a टू द पावर p हो और a टू द पावर q हो, तो वो कैसे सॉल्व होगा, p माइनस क्यू, डिवीजन में है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस क्यू, ओके। तो अगेन हम कुछ ले लेते हैं, जैसे p हमारे पास क्या है 4 है और q हमारे पास क्या है 2 है, तो a टू द पावर 4 है, a की पावर 2 है, तो ये क्या चला गया 4 माइनस 2 हो गया, तो a की पावर क्या बन गई 2, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास फोर्थ वन कि a टू द पावर यहाँ पे p है, ओके, बट हमारे पास अब यहाँ पे b की पावर है p। तो ये सॉल्व कैसे होगा, a b मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और p इनकी पावर बन जाएगी। जैसे a हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3, ठीक है, और b हमारे पास 3 है और 3 की पावर 3, तो ये कैसे सॉल्व होगा 2 × 3 और इसकी पावर p ऊपर 3, ओके, 3 2 जा 6 और ये हमारा आंसर आ गया, ओके।